Brothers and sisters, we'll look at Matthew 5:8, a verse which really challenged and blessed me. भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित समाचार इसका 5वां अध्याय और 8वें वचन को पढ़ेंगे, जिसे पढ़कर मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ। Yeah, blessed, the word blessed means happy. Happy are those who are pure in heart, not sinlessly perfect in heart, but pure in heart, for they shall see God. और यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जिनके शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध हृदय अर्थात आनंदित हृदय, जो धन्य है वो आनंदित हृदय को दर्शाता है। यह नहीं कि वह निष्पाप होगा व्यक्ति, लेकिन अवश्य हृदय में वह शुद्ध होगा। True happiness is in having a pure heart given by the Lord. We cannot manufacture it. ब्रदर, विल यू रिपीट? Yeah, pure heart is something God gives. We cannot manufacture it. और जो शुद्ध हृदय है वह परमेश्वर हमें देता है, ऐसा नहीं कि हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं। Pure in heart means to have that undistracted devotion to the Lord, to be devoted to one person, that is Jesus. और शुद्ध हृदय अर्थात एक ही व्यक्ति को समर्पित हृदय, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, Those, जिससे कोई हमारा जो हमारा मन है भटकता नहीं है। those who love the Lord with all their being, with their heart, soul, mind, and strength. और जो व्यक्ति अपने पूर्ण हृदय, बुद्धि, शक्ति, प्राण और आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करता है। Yeah, let us come before the Lord honestly to see if there is any Phariseeism in us, because Pharisees were only involved in the outward purity, not the inward purity. और अपने हृदय की शुद्धता में अपने आप को जांच कर हम प्रभु की उपस्थिति में आए कि हमारे अंदर कोई फरीसीपन बाकी है क्या नहीं, क्योंकि फरीसी लोग बाह्य रूप से शुद्ध रहकर प्रभु से भेंट करते थे। The Pharisees were happy just to clean the outside of the cup, but Jesus said, blessed are the pure in heart. Heart is hidden inside. The inside of the cup should be cleansed first, so that the outside also will be clean. और जो फरीसी लोग थे वे अपने बाह्य जीवन को साफ रखते थे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं। हृदय ऐसी अवस्था है, ऐसा स्थान है जो गुप्त में है, जिसे हम स्वयं और परमेश्वर केवल जानता है। In the Song of Solomon, the bridegroom tells to the bride. I was thinking if the Lord can tell that to each one of us. A locked garden is my bride, a locked spring, a sealed fountain. वर्सेस Song of Solomon, chapter 4, verse 12, which means the bride is locked garden. Nobody can enter into it other than the bridegroom. और जो सबोपदेशक है, नहीं, Shreshth Geet, श्रेष्ठ गीत जो है उसमें लिखा है 4वां अध्याय और इसके 8 वर्ष verse 12. 12, 8वां अध्याय, 4था अध्याय और उसके 12वें वचन में ऐसा लिखा है। हम पढ़ेंगे 4:12। मेरी बहन, हाँ, मेरी दुल्हन तो एक बंद फुआरी सी है, चट्टानों से रूंधा हुआ बाग और बंद किया हुआ सोता है। Which means we are like a locked garden, which means we don't give any access to anybody else, but only to one person, single person, that is the Lord Jesus, no one else. और इसका अर्थ है हम उस बगीचे के समान है जिसका एक बाड़ा लगा हुआ है और वह अंदर ही है, लेकिन हम सबके लिए वह बाड़ा खोलते नहीं है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति के लिए हम अपना बाड़ा या द्वार खोलते हैं। That is what purity means: singleness, singleness of mind, singleness of heart, having one heart and one mind, not double heart. और यही है हृदय की शुद्धता, कि एक मन और एक चित्त रहना, दुचित्ता न रहना। That's why the psalmist said, Lord, unite my heart. Why did he pray that prayer? Unite my heart. और इसीलिए भजन संहिता ने कहा, परमेश्वर मेरा हृदय एकाग्र चित्त कर, क्यों उसने ऐसा कहा और लिखा है? Because our heart is so divided, we have made so many compartments: spiritual life, financial life, church life, family life. It's all divisions, so many divisions. क्योंकि है हमारे हृदय के अलग अंदर हमने कितने ही अलग अलग विभाजन या भाग बनाकर रखे हैं। एक आत्मिक जीवन, एक कलीसिया के साथ का जीवन,
एक पैसे के विषय का जीवन, ऐसे अलग अलग विभाजन करके हमने अपने हृदय के रखे हैं। May we pray that prayer, Lord, I don't want to compartmentalize my life. Unite my heart. I want to have just one heart, and that one heart is for you. और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इस तरह से मैं अपने हृदय को विभाजित रखना नहीं चाहता, लेकिन जैसा लिखा है कि मेरा हृदय एकाग्र चित्त रहे, एक ही विचार और एक ही मेरा मन रहे। That's what Paul said, Lord, there's only one thing I do, that is to win Christ and to know him. और जैसे पौलुस ने कहा कि एक ही बात है जिसका मैं पीछा करता हूँ, कि मैं उसके जी उठने के सामर्थ्य को जान पाऊं। Like the psalmist said, Lord, one thing I desire from you. I don't have any prayer requests, only one thing from you, that I may behold your beauty in the temple, in the house of the Lord. और जैसे भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे मंदिर में तेरी मनोहरता को ही निहारता रहूं, ऐसा ही मेरा हृदय रहे। One thing, Jesus said, you remember to that rich young ruler, you have so many good things, but there's one thing lacking in your life. You love your property and money too much. और एक बात जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान नवयुवक से कहा कि तेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात की तुझ में घटी है, That you love your money and property too much. कि तू बहुत सी बातों में अपने संपत्ति और पैसे से बड़ा ही प्रेम रखता है। And Jesus said to Mary's sister, there's one thing missing in your life. You're worried about too many things. That one thing is to sit at my feet and listen to me. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी मार्था से कहा, मार्था ये मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए विचलित और चिंतित रहती है, लेकिन वास्तव में एक ही बात, एक ही भाग है That is what purity in heart means. और That we have only one, focused on one thing, that is to be devoted to the Lord, in love. और यही है हृदय की शुद्धता, कि हमारा समर्पण केवल एक ही व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह से प्रेम में भरा रहे। That's what impurity means. When purity means oneness, singleness of mind, not having a double mind, impurity means double mindedness. और इसी के विपरीत है अशुद्ध हृदय, अर्थात जैसे ही शुद्ध हृदय अर्थात एक ही मन और विभाजित न हुआ हृदय, उसी तरह दो चित्तों में बटा हुआ हृदय एक अशुद्ध हृदय को दर्शाता है। Do we remember what James said? Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double minded. और हम याद रखते हैं जैसे याकूब ने कहा, हे दुचित्तों, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने हाथों को धो लो, अर्थात एक मन और एक चित्त हो जाओ। Double minded means an impure heart. और दुचित्ते अर्थात एक अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति। We mix it with other things and make it impure. और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सी चीजों से अपने हृदय को भर देते हैं, और इस तरह से अपने हृदय को हम अशुद्ध करते हैं। We are all naturally impure people. Nobody has to teach us. We have it in our flesh. और हम स्वाभाविक ही रूप से सब ही अशुद्ध हृदय के लोग हैं, यह हमें किसी बताने की जरूरत नहीं है, कोई हमें इसके विषय में सिखाए इसकी जरूरत नहीं है। That's why it's important to realize that it is the Holy Spirit. Start from the Holy Spirit, not from our determination or our decision. No, it should start from the Holy Spirit. Holy Spirit makes us pure through His Word, the Word of God. और इसीलिए हमें याद रखना है कि केवल पवित्र आत्मा ही है जो यह हमारे हृदय को शुद्ध करने का कार्य कर सकता है, अर्थात पवित्र आत्मा अपने इस वचन के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। God's Word is compared to purity. God's Word is so pure. और परमेश्वर का वचन का तुलना शुद्धता से किया जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही शुद्ध है। Pure milk of the Word, Peter said. और पतरस ने कहा यह एक शुद्ध दूध के समान है। I remember hearing of a testimony of an unknown young girl who was blind in France. और मैं एक ऐसी बहन के बारे में, उसकी गवाही के बारे में जानता हूँ जो फ्रांस की रहने वाली थी। We don't even know her name. और हम उसका नाम भी नहीं जानते। She lived many years ago. और वह बहुत ही वर्ष पहले जीती थी, वह अंधी थी। She was an unbeliever. और वह एक अविश्वासी बहन थी। And somebody gifted her, blind people can't have a Bible like us. They need to have a Braille script. और हम जानते हैं कि अंधों के पास हमारे समान ऐसा लिखित पवित्र शास्त्र नहीं रहता, लेकिन उनके पास जो लिखित पवित्र शास्त्र रहता है वह ब्रेल लिपि में रहता है। So somebody gifted her a Braille script of Mark's Gospel. और किसी ने उस बहन को मरकुस के सुसमाचार का ब्रेल लिपि में लिखा हुआ सुसमाचार दिया। So they read it with the tip of their fingers. और लोग जो अंधे हैं इन्हें पढ़ते हैं, अपने उंगलियों से उसे छूकर पढ़ते हैं। And as she was studying the word, she was convicted by the Holy Spirit and she became a child of God.
और जैसे ही वह बहन ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उसका हृदय कायल हुआ और वह परमेश्वर की बेटी या परमेश्वर का जन बन गई। And after that, her heart was so hungry for the Lord, she began to read and read and read. Finally, the tip of her fingers became so numb and lost all the sensitivity. और वह परमेश्वर के वचन से इतना प्रभावित हो उठी कि वह उससे बार बार पढ़ने लगी, और ऐसा नतीजे स्वरूप हुआ कि बार बार वह वचन ब्रेल लिपि में पढ़ने के कारण उसकी उंगलियों के जो महसूस करने की शक्ति थी वह बिल्कुल चली गई। And this young girl, in her ignorance, she cut the tip of her fingers, thinking and hoping that the sensitivity will come back. But she only realized later she lost the sensitivity forever. और उसने अज्ञानतावश परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसने अपनी उंगलियों को काटा, यह सोचते हुए कि उसका महसूस करने की शक्ति उंगलियां काटने से वापस आ जाएगी, लेकिन दुखद यह हुआ कि उसने महसूस करने की शक्ति उंगलियां काटने से हमेशा के लिए खो दिया। And she was so heartbroken and she wanted to say goodbye to the Bible. और उसका हृदय इतना टूट गया और उसने पवित्र शास्त्र को टाटा और बाय बाय करने के लिए ठाना, And she felt to kiss the Bible. और उसे लगा कि अब आखिरी बार मैं पवित्र शास्त्रों को केवल चूम ही लूं। And when she kissed the Bible, she realized that with, our lips are much more tender than our fingers. She began to sense much more clear than her fingers with her lips. और जैसे ही उसने पवित्र शास्त्रों को चूमा, तब उसने यह जाना और महसूस किया कि जैसे हमारी उंगलियों से बढ़कर हमारे होठ संवेदनशील रहते हैं, उसने देखा कि उसके होठ उंगलियों से बढ़कर संवेदनशील है। And she was so thrilled, she was so joyful, and she thanked the Lord. And I remember when I read this article first in my single days, I wept and wept because I used and misused my eyes. और जब उसने ऐसा महसूस किया, तब वह बहुत ही और अति आनंदित होकर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। और मुझे स्मरण है कि जब पहली बार मैंने इसे पढ़ा था इस घटना के विषय में, तब मैं बहुत ही फूट फूट कर प्रभु के सामने रोया था, यह कहकर कि पिता, मैंने तेरी आंखों का बहुत ही दुरुपयोग किया है। If I continue in impurity in my eyes, I cannot see the Lord. और जब तक मैं अपने हृदय आंखों को शुद्ध नहीं कर लेता हूं, मैं परमेश्वर को कभी नहीं देख पाऊंगा। All of us have eyes, all of us have a Bible. Let us ask the Lord, like it says in Isaiah 33:17, Lord, when I open the Bible, I want to see your beauty in the pages of the scriptures. I और don't want to see some doctrine or some law, but I want to see your beauty. और हम सच्चाई से प्रभु के साथ प्रभु से कहें, जैसे यशायाह की पुस्तक इसका 33वां अध्याय और 17वें वचन में लिखा है कि जब कभी मैं परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र को पढूं, तब मैं तेरी मनोहरता और उत्तमता इसमें देख पाऊं। हम इसे पढ़ते हुए कोई ज्ञान और प्रकाशन हमें से आशा न रखें, या इसके ज्ञान बढ़ोतरी की आशा से हम न पढ़े। And to have a prayer, Lord, open my eyes. I am so impure, Lord, open my eyes so that I may behold you. You're that wonderful person. I want to behold you in the pages of scriptures. और प्रभु से कहे कि पिता परमेश्वर, मेरी आंखों को शुद्ध कर कि मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए तेरी महिमा को इसमें देख पाऊं, न कि ज्ञान को मैं इसमें ढूंढूं और इसमें देखूं। I am challenged when I hear of such testimonies. और ऐसी गवाहियों को सुनकर मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। Let us not be lazy. All of us have eyes. None of us are blind, and we all have a copy of Bible. और हम सब ऐसे आलसी न बने, हम सब देख सकते हैं, और हम सबके पास दिखने वाला ऐसा एक पवित्र शास्त्र लिखित रूप में सबके पास है। And the second thing is that the Holy Spirit will make us pure by being in fellowship with others who are pure in heart. और दूसरी बात जिससे पवित्र आत्मा हमारे हृदय को शुद्ध रख सकता है, यह कि हम उन लोगों से संगति रखें जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कराते हैं और करते हैं। If I am all alone, not willing to fellowship with others, I'll remain in my Pharisaical condition. और अगर मैं अकेला ही रहना चाहता हूं और किसी की संगति की चाहत नहीं रखता हूं, तो मैं एक फरीसी के समान बन जाऊंगा। God's word encourages us to call on Him not alone, but with those who have a pure heart. और परमेश्वर का वचन हमें पुकार कर कहता है कि हम केवल अकेले में उसकी संगति न करें, लेकिन उनके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें जिनका हृदय शुद्ध है। You remember the Israelites, when they left Egypt, there was a mixed multitude that went along with them. और आप जानते हैं, जब यहूदी लोग मिस्र से निकले, तो उनके साथ एक मिली जुली अन्य जातियों की जनसंख्या भी उनके साथ थी। And you read in the book of Numbers, chapter 11, the mixed multitude, they had a great lust
greedy cravings, not healthy cravings, but greedy cravings. Because of that, you read that the children of God, the Israelites, also started complaining against God. और आप देखेंगे गिनती की पुस्तक इसके 11वें अध्याय में कि वह मिली जुली एक जनसंख्या जो उनके साथ थी, उनमें से कितने लोग जो अन्य जाति थे वे एक लालची और लोभी स्वभाव के लोग थे, और जिनकी संगति के कारण हम देख पाएंगे आगे कि यहूदी भी उनके साथ मिलकर लालची और ऐसे लोभी और कुड़कुड़ाने वाले बन गए। Yeah, remember, Jesus is called the friend of sinners. Yes, we should make friendship with sinners, but not to be contaminated by their impurity, but we और should win their heart for the Lord. हाँ, प्रभु की ये बात याद रखें कि हमें पापियों के साथ संगति करनी है, लेकिन यह देखते हुए कि हम उनके साथ अपने आप को हम अशुद्ध न कर बैठे, उनको शुद्ध करने के लिए हम उनके साथ संगति करें। And the third thing the Holy Spirit uses, first thing what we read is the Holy Spirit uses the Word of God. Second, the fellowship with other pure hearted brothers and sisters. Third, the Holy Spirit uses brokenness. He breaks us and crushes our ego to make us pure. और पहला जो हमने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और दूसरा उन भाइयों और बहनों की संगति के द्वारा जिनके हृदय शुद्ध हैं हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और तीसरा पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तोड़कर हमारे हृदय को शुद्ध करता है। Without brokenness, we cannot become pure. और टूटेपन के बिना हम हृदय में शुद्ध नहीं बन सकते। I remember this verse which challenged me a number of times. Exodus chapter 27, verse 20. और मुझे बहुत याद है एक पवित्र शास्त्र का निर्गमन की पुस्तक का इसका 20वां अध्याय और 27वां वचन। 27:20. Chapter 20. 27वां अध्याय और 20वां वचन। The Lord gave a commandment there to the Israelites. और वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को एक आज्ञा दी है, And the principle applies now in the new covenant as well. और वही सिद्धांत आज नए करार में भी लागू होता है। See, to make the lamp burn continually, they had to bring pure oil. और उस दीपक को सदैव जलते रखने के लिए उन्हें हमेशा शुद्ध तेल की जरूरत थी। And how is that pure oil produced? और किस तरह से वह शुद्ध तेल का उत्पादन होता था? By crushing the olives. और वह जैतून के फलों को निचोड़ने से या निचोड़ने से निकलता था। When those olives were crushed and beaten, the pure oil comes out. और जैसे ही वे जैतून के फल निचोड़े जाते थे तो उनमें से शुद्ध तेल निकलता था। The same way, when we are crushed and broken, what is crushed, by the way? It is our ego, our pride. That is the most dangerous thing, that the Holy Spirit wants to crush it. और किस चीज को हम टूटना कहते हैं? वह टूटना हमारे हृदय के अंदर एक अहंकार को तोड़ना होता है। यह अहंकार ही बहुत ही बुरी चीज है जिसे पवित्र आत्मा तोड़कर हमें शुद्ध करना चाहता है। And then the purity of the Lord comes through us. और इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की शुद्धता हमारे अंदर और हमारे द्वारा आती है। Do you remember some Greeks in John chapter 12? Some Greeks came and asked a question. We want to see Jesus. और आप याद रखते हैं जब यूहन्ना समाचार के 12वें अध्याय में कुछ ग्रीक लोग थे जो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। They want to see Jesus. We want to see Jesus, they said. और वहां पर लिखा है कि हम प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। How do we see Jesus? और हम किस तरह से प्रभु को देखते हैं? When Apostle John very clearly said, no man has ever seen God at any time. We are not talking about seeing Jesus physically. और जैसे जॉन परमेश्वर के प्रेरित ने कहा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, हम शारीरिक रूप में परमेश्वर को नहीं देख सकते। That we'll do it when we get to heaven. और जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम शारीरिक रूप में भी जो आत्मा की देह हम उसे देखेंगे। But now we see Jesus in our character, in our surroundings, in our circumstances. और लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे चरित्र में देखेंगे, हमारे आजू बाजू के लोगों के स्वभाव में देखेंगे, और परिस्थितियों में हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। How to see Jesus? Jesus said, you'll have to be like that grain of wheat, willing to fall into the ground and die. और कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं? प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि गेहूं का दाना जब भूमि पर गिरता है और मरता है, इस तरह से हम अपने लिए मरकर प्रभु को देख पाएंगे। I remember the example of Francis of Assisi. और मैं एक उदाहरण जानता हूँ फ्रांसिस असीसी के विषय में। Once he looked through a window, he saw a dog, playing with a piece of cloth. It was tearing that cloth apart into pieces. और उसने अपनी खिड़की में से देखा कि एक कुत्ता
एक कपड़े से खेल रहा था और उसे कपड़े के साथ खेलते हुए वह उसे अपने दांतों से फाड़ रहा था। He felt the Lord whispering in his heart, if I allow others to tear apart your reputation, will you still stand for me? और उससे पवित्र आत्मा ने कहा उस दृश्य को दिखा करके, यदि मैं औरों के सामने इस तरह से तुझे फाड़ूंगा तब भी क्या तू मेरे नाम पर सच्चाई पर स्थिर रहेगा? And I think he said yes. लेकिन मैं याद रखता हूँ कि उसने कहा हाँ। And maybe after, I think few days later, he is actually from a very rich background, but he gave up all riches and he was living in a colony in a simple lifestyle. और पहले तो वह एक बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसने प्रभु को जानने के कारण अपना सब धन संपत्ति छोड़कर एक कॉलोनी में गरीबों के साथ वह रहने लगा। And one fine day, this unknown stranger, one lady comes and dumps a newborn baby into his hands, and she publicly says, "This is the fruit of your sin," and she walks away. और वहां पर ऐसा हुआ है कि उस परिसर में रहते हुए एक अनजान स्त्री आकर एक बच्चे को उसके हाथों में दे देती है और कहती है, यह बच्चा तेरी पाप की कमाई है, तेरा पाप है। And all those people in that colony, they started to, complain and condemn him. Oh, this is what this so-called man is doing. Is it he's fooling around with women in secret? और तब उस परिसर के लोगों ने, जो उसे एक भला व्यक्ति करके जानते थे, उसे यह ताना मारने लगे कि यह तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति दिखता था, लेकिन यह ऐसा व्यक्ति निकला है जो स्त्रियों के साथ छुप के कुकर्म करता है। And that woman was a prostitute. लेकिन वह स्त्री एक वेश्या थी। And Francis doesn't have a clue who this woman is. He's shocked. He's speechless. और जो फ्रांसिस था, उस भाई के पास कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं था कि वह वो स्त्री को जानता है। इसके लिए उसका मुंह बंद हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं And थे। and he asked the Lord, Lord, what should I do? और तब उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? And he felt the Lord telling him in his heart, do what I did on the cross. When people told all lies about me, falsely accused me, keep quiet, take care of that baby. और प्रभु ने उससे कहा, जैसे मैंने किया वैसे ही तू कर। जब सूली पर लोग मुझे झूठे इल्जाम लगा रहे थे लेकिन मैं चुप रहा, उसी तरह तू भी इस स्त्री के इल्जामों को चुपचाप सह ले। All the people surrounding, insulting him, saying bad things about him, that really crushed him. और लोग जो उसके आसपास रहते थे उसको ताने मार रहे थे और उसके विषय में बुरा कह रहे थे। इन सब अवस्थाओं में उसका हृदय टूट गया। And finally, I think many years later, that same woman came back and she publicly apologized and said, this man is innocent. और ऐसा हुआ कि बहुत से वर्षों के बाद वही स्त्री आकर यह कहने लगी कि यह व्यक्ति बहुत ही निर्दोष है। And this man of God, Francis, he became a great saint. और यह फ्रांसिस परमेश्वर का जन, एक अच्छा परमेश्वर का जन बना। That's because the Holy Spirit led him through brokenness and made him a pure man. यह इसलिए हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को तोड़ा और उसके द्वारा वह एक शुद्ध ऐसा व्यक्ति बन गया। In Psalm 73, it says, God is good to those who are pure in heart. और भजन संहिता 73 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उनके लिए भला है जिनके हृदय शुद्ध हैं। What is that goodness? वह अच्छाई क्या है? Like we have heard that verse 25 so many times. Lord, there is nothing on this earth that I desire other than you. That is the purity of heart. और जैसे इसी भजन संहिता 73:25 में लिखा है, परमेश्वर तुझे छोड़ मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, स्वर्ग में तुझे छोड़ और मेरा कौन है? यही है हृदय की एकाग्रता और शुद्धता। Like David said in one of the Psalms, Psalm 57:7, Lord, my heart is fixed. I don't want to keep moving. Lord. Like we have, frames in our homes. It is fixed in one place. Lord, I want my heart to be fixed on one thing, that is to be devoted to you. और जैसे भजन संहिता में दाऊद 57:7 में कहता है कि परमेश्वर मैं अपना ध्यान केवल तुझी पर केंद्रित करना चाहता हूँ, एक ही और मैं अपना ध्यान रखना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर में फ्रेम लगे रहते हैं, अलग अलग फ्रेम रहते हैं, लेकिन वो अपने स्थान से हिलते नहीं है, उसी तरह दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने हृदय को उस फ्रेम के समान केवल तुझी पर लगाए रखना चाहता हूँ। And there's a wonderful promise in Ezekiel 11:19. और एक अद्भुत वायदा है यिजकेल की पुस्तक एक 11वां अध्याय और 19वें वचन में। I hope we will all ask the Holy Spirit to burn that word into our hearts. Ezekiel 11:19, the Lord promises saying, I will give you one heart and I'll give you a new spirit and I'll give you a new heart of flesh, take away the heart of stone. और मैं आशा करता हूँ हम सब यहाँ उपस्थित, हमारे अंदर ऐसे एक जलन भरा एक हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर ये वचन जो तूने कहा है कि मैं तुझे एक शुद्ध हृदय दूंगा, उसे पाने के लिए हम तीव्र हो जाएं। I'll give you one heart.
मैं तुम्हें एक ही हृदय दूंगा। Why? Because we are so double-minded people. We have double hearts. यह इसलिए प्रभु कहता है क्योंकि हम बहुत ही दुचित्ते लोग हैं, हमारा हृदय विभाजित हुआ हृदय है। And he gives one more wonderful promise in Ezekiel 36:29. The Lord promises, claim this. I have claimed it in the past. Lord, it says, I will save you from all your impurities. और जैसे यशायाह पुस्तक 36-29 में लिखा है, जो वायदा है, इसे मैंने कई बार अपने विषय में दावा किया है कि परमेश्वर तू हमें एक शुद्ध हृदय देगा। Why did I claim that promise? Because I know that I have so much of impurity in me. यह दावा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी अशुद्धता मेरे अंदर मैंने देखी है। The Lord will save us from all impurities. और प्रभु हमें बचाएगा, अर्थात छुटकारा करेगा हमारी सब अशुद्धता से। You remember that word integrity, in the English word integrity. आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो इंटेग्रिटी अर्थ है, अर्थात एक सम्मान, It is derived from the, I think it's Greek or some other language. और It is derived from the word called integer or integer. और यह जो भाषांतर हुआ है ग्रीक भाषा या दूसरी किसी भाषा में से हुआ है, जिसमें लिखा है इंटीगर, Which means we all know what an integer is in mathematics. It is the quality of having an undivided. You can't divide an integer. और इंटीजर इसका अर्थ है एक ऐसा आंकड़ा जिसे कभी भी विभाजन नहीं किया जा To सकता है। have a heart of integrity, Lord, I want my heart to be devoted only to you. और जैसे हम कहें कि प्रभु इसी आंकड़े के अनुसार मैं अपना हृदय कभी विभाजित न हो, ऐसा मैं हृदय चाहता And हूँ। what is the result of having a pure heart? We will see God, like Brother Zach beautifully paraphrased in the past. We will see God everywhere. और क्या होगा हमारा हृदय शुद्ध होने का नतीजा? हम हर जगह पर परमेश्वर को हर अवस्था में देख पाएंगे, जैसे भाई जैक ने भी इसकी व्याख्या की है। When Jesus was arrested, beaten black and blue, what was Jesus' attitude? He didn't look at Judas, he didn't look at the Pharisees or the Roman soldiers. He said in John 18:11, the cup my Father has given me. He saw his heavenly Father everywhere. He didn't look at Judas or the Roman soldiers or anyone else. और क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को लोग मार और पीट रहे थे और उसे लाल कर रहे थे, तब उसने यहूदा इस्करियोती को और अपने मारने वाले की ओर नहीं देखा, लेकिन वह परमेश्वर के को देख पा रहा था। जैसे लिखा है योना के समाचार में कि परमेश्वर ने यह प्याला पीने की मेरे लिए अनुमति दी है। Peter was impure. That's why he got so angry. He lost his temper, took a knife and chopped off one of the soldiers' ear because he was impure. He couldn't see Heavenly Father there. और जो पतरस था उसका हृदय अशुद्ध था, इसके लिए वह क्रोधित हो उठा जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना आई और उसने चाकू निकालकर एक सिपाही का कान काट दिया। You remember a godless man called Shimei in 2 Samuel 16. He was cursing and shouting at David. और हम देखते हैं 2 शमूएल 16 में एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन था, जिसका नाम शिमी था, जो दाऊद को कोस रहा था। And you know what the soldiers told David? Please give us one word of permission. We will go and chop off that man's head. और आप जानते हैं जो दाऊद के सैनिक थे, उन्होंने दाऊद से अनुमति मांगी कि हमें अनुमति दे कि हम इस शिमी का जो तुझे शाप दे रहा है उसका हम वध कर दें। But you know what David said? लेकिन आप जानते हैं कि दाऊद ने क्या कहा है? He said, the Lord has told him to curse me. Why should I stop him? और उसने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर ने अनुमति दी है कि ये शिमी मुझे कोसे, इसलिए वह कुछ नहीं किया। Next time when maybe your husband or wife or somebody shouts at you or gets angry at you, can we ask the Lord for such a pure heart and say, Lord, you have permitted that person to get angry at me. और आने वाले दिनों में अगर आपका जीवन साथी आपके ऊपर क्रोधित होता है, तो क्या आप प्रभु से यह कहेंगे कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं कि इसकी अनुमति तूने दी है और सिर्फ किसी को इसके प्रति कोई दोष या झगड़ा नहीं करना चाहता। I remember the testimony of a very godly man in Scotland और मैं एक अच्छे परमेश्वर के जन की गवाही को जो स्कॉटलैंड का है जानता हूं, whose wife was very self-willed and adamant lady. और उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही स्वार्थी थी और मानो एक घमंडी ऐसी औरत थी। So this man of God, in Western countries it's so cold, so they sit near the fireplace. और जो साउथ फॉरेन कंट्रीज है, यूरोप के कंट्रीज है, वहाँ बहुत ही ठंड रहती है, इसलिए घरों में लोग आग जलाकर उस आग के बाजू में बैठते हैं। So this man of God was studying the word of God near the fire. और उस आग के बाजू में बैठकर आग सेकते हुए वह परमेश्वर का जन परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। His wife marched into the room
plucked the Bible from his hand and threw it into the fire. और उसकी पत्नी ने अपने रूम से बाहर आकर इस अपने पति के हाथ से पवित्र शास्त्र को उठाया और उस आग में उसे झोंक दिया। And you know what this man of God said? तो आप जानते हैं ऐसा देखकर उस परमेश्वर के जन ने क्या कहा? She looked at her and quietly said, I never sat at a warmer fire. और उसने उसकी और अपनी पत्नी की ओर बड़े ही प्यार से देखकर कहा, इससे पहले ऐसी गर्मी आपकी मैंने कभी महसूस नहीं की। Because this man of God was not simply spending time with a book called Bible, he was spending time with the Lord himself. There's और a यह difference between spending time with the Lord and a book called Bible. और यह जो परमेश्वर का जन था केवल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का लिखित वचन हाथ में लिए हुए नहीं था, लेकिन वह स्वयं परमेश्वर की संगति में बैठा था। क्या आप इस अंतर को जानते हैं? And that kind words from the husband really touched her, and she became a gracious woman. और ये बहुत ही ममता से भरे हुए शब्दों ने उसकी पत्नी के हृदय को कायल किया और वह परमेश्वर की जन बन गई। And the wife who was like a Jezebel, she became like a godly Lydia. और जो पत्नी इजबेल के समान थी वह एक परमेश्वर की दैवी जन लिडिया के समान बन गई। And she who was like a thorn in the flesh, pain in the neck, she became like a beautiful lily. और वह जो एक कांटे के समान थी बहुत अच्छे खूबसूरत फूल के समान लिली के समान बन गई। Because when she behaved such an unchrist-like evil way, he could see God's hand. He did not see his angry wife, he could see God's hand because he was a man with a pure heart. और जब कभी उसकी पत्नी उसके साथ बहुत ही बुरा वर्ताव करती, मानो कांटों के समान उससे वर्ताव करती, तब वह उसे नहीं लेकिन परमेश्वर को देख पाता था कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, अर्थात यह परमेश्वर का जन जो परमेश्वर को देख पाता था उसका हृदय शुद्ध था। What we just heard is not a fairy tale. This is a real testimony of some unknown man of God in Scotland, somewhere in Europe. और हम जो ये सुन रहे हैं कोई कहानी नहीं है या परी कहानी नहीं है, लेकिन यह एक हकीकत की कहानी है जो स्कॉटलैंड यूरोप के एक देश में घटित हुई है। And we have heard many times about the testimony of John Wesley. और हमने कई बार जॉन वेस्ली की गवाही के विषय में सुना है। Because the earlier man of God in Scotland, his wife became a gracious woman. और पहले जो ये परमेश्वर का जन था जो स्कॉटलैंड में था उसकी पत्नी एक अच्छी परमेश्वर की जन बन गई। But in case of John Wesley, his wife was like Jezebel and she remained like Jezebel. She never changed and she finally left him and went away from him. और लेकिन जॉन वेस्ली की जो पत्नी थी जो इजबेल के समान थी वह अंत तक इजबेल के समान ही बनी रही, अंत में वह उसे छोड़कर भी चली गई। Sometimes she would drag him on the floor in his house. और कई बार वह उसे अपने घर के फर्श पर घसीटती थी। And in front of other church people, she would pair him up with another sister, suspicious of him. और कई बार वह कलीसिया के बाकी बहनों के साथ उस पर संदेह या उन पर शक करती थी उनके साथ। Early in the morning, 4 o'clock, he used to get up to go preach the gospel. She would follow him secretly to see whether he is really preaching the gospel or running after other women. तो वह उन दिनों में परमेश्वर का जन जॉन वेस्ली 4 बजे उठकर सवेरे परमेश्वर का वचन सुनाने जाता था, तो वह छुपके से उसका पीछा करती यह देखने के लिए कि सच में वह सुसमाचार प्रचार कर रहा है या किसी औरतों के साथ बुराई कर रहा है। And she would go to the local newspaper and tell all kinds of false stories about her husband. और इसके बाद भी वह न्यूज़पेपर्स वालों के पास जाती थी और झूठी खबरें अपने पति के विषय में उन्हें बताती। In all this, God crushed John Wesley. और इस सब तरह से परमेश्वर ने परमेश्वर के जन जॉन वेस्ली के हृदय को तोड़ा। Many people think you need a godly wife or a godly husband in order to become godly, but here is a saint of God who had a terrible wife, horrible wife, but he became a great pure man of God. और हम में से कई सोचते होंगे कि अच्छा परमेश्वर का जन बनने के लिए मुझे एक अच्छा जीवन साथी पत्नी या पति चाहिए जो बहुत ही आत्मिक हो, लेकिन यहाँ एक जॉन वेस्ली के समान ऐसा परमेश्वर का जन है जिसकी पत्नी बिल्कुल आत्मिक नहीं थी या परमेश्वर का भय मानने वाली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक परमेश्वर का अच्छा जन और पवित्र हृदय का जन बनकर जिया। John Wesley never uttered a rude word back at her. और जॉन वेस्ली ने कभी भी एक कड़वा शब्द उसके विरुद्ध में उसके सामने या पीछे भी नहीं कहा। Like the psalmist said in Psalm 101 verse 2, Lord, I want to walk, let us all say that, I want to walk within my house with an undivided heart. और जैसे भजन संहिता लिखने वाला 101:2 में लिखता है कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख ऐसा चलना चाहता हूँ कि मेरा हृदय बिल्कुल तुझे छोड़ और कुछ विभाजन नहीं हुआ है। To pursue peace with everybody.
और हर एक के साथ मैं शांति का पीछा करूं। Without that, we cannot see the Lord, like it says in Hebrews. और इब्रानियों में भी लिखा है, इसके बिना हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। You know, there are two words that really touched me recently. और दो वचन है जो इन दोनों में मुझे बहुत ही छू रहे हैं, That's about our dear Lord. और ये वचन है हमारे प्रभु के बारे में है। It says, when he was humiliated, tortured in Isaiah 53:7, it says, he did not open his mouth. और यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है, जब उसके साथ बुरा सलूक और बुरा बर्ताव हुआ तब उसने अपना मुंह नहीं खोला। And you read in Matthew 5:2 on the Sermon on the Mount, it says, he opened his mouth. और मत्ती 5:2 में हम देखते हैं, जो पहाड़ी उपदेश है वहां पर लिखा है कि उसने प्रचार करने के लिए अपना मुख खोला। Just meditate on those two words. He did not open his mouth, he opened his mouth. और इन दो वाक्यों पर हम ध्यान करेंगे, एक बार कि उसने अपना मुंह नहीं खोला और दूसरी बार उसने अपना मुंह खोला। When the Lord told Jesus, keep quiet now, don't say anything, और he जब obeyed. और When जब the Father told him, now open your mouth, say something, he would say. और जब परमेश्वर ने कहा उसके पिता ने कि कुछ भी तुझे बोलना नहीं है, तो अब उसने अपना मुंह बंद रखा, और जब पिता परमेश्वर ने कहा बोल, तब उसने अपना मुंह खोला। What is the result of that? In Luke 4:32, whenever Jesus opened his mouth, his word was with such power and authority. और इसका नतीजा क्या निकला? लूक 2:32 में लिखा है कि जब कभी उसके मुख से वाणी निकलती तो बहुत ही एक प्रभाव वाली वाणी उसके मुख पर रहती। Whenever we shut our mouth, when God says, shut your mouth, God will be with our mouth whenever we open our mouth. और जब कभी परमेश्वर हमें कहे कि अपना मुख बंद रख और हम उसे मानेंगे, तब जब कभी हमारा मुख परमेश्वर खोलने के लिए हमें कहेगा, तब परमेश्वर हमारे मुख के साथ रहेगा। How can I come to such a place? और मैं इस स्थिति में कैसे आ सकता हूँ? I need to ask the Lord, Lord, I don't want to be like Peter, who saw the soldiers and all this, swords and knives, but I want to be like Jesus. Give me a pure heart. I'm so impure, Lord. I want to see your hand everywhere. और मैं अपने विषय में और आपके विषय में भी आशा रखता हूँ कि हम प्रभु से कहें कि पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ बुरा सलूक हो रहा था तब वह शांत रहा, लेकिन मैं पतरस के समान बनना नहीं चाहता, जिसने उससे सताव को देखकर अति क्रोधित हो उठा और जिससे यह देख पाया कि वह परमेश्वर को न देखने का उसका हृदय शुद्ध नहीं लेकिन अशुद्ध रहा। And not only that, Jesus' eyes were so pure, filled with forgiveness. When Peter sinned against him again and again and again, Jesus just looked at him with eyes full of purity of forgiveness. और इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का हृदय और आंखें इतनी शुद्ध थी कि जब पतरस ने बार बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तब भी पूर्ण पवित्रता से और शुद्ध आंखों से, हृदय से वह पतरस की ओर देख पाया। Whenever we think of purity, we think of only sexual purity, but there's something more than that, brothers and sisters, having eyes full of purity of forgiving others. और जब हम शुद्धता के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ सीमित सोचते हैं, लेकिन शुद्धता दर्शाती है कि क्षमाशील आंखों से किसको देखना। What happened when Jesus looked at Peter? Peter went away. That led him to repentance and brokenness. और ऐसी क्षमाशील आंखों से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखा तो क्या नतीजा हुआ कि पतरस जाकर फूट फूट कर रोया और उसने पश्चाताप किया। May we come to the Lord honestly. और हम इस तरह से ईमानदारी से प्रभु के पास सामने आए। James says God's word is like a mirror. We see ourselves. और याकूब कहता है कि परमेश्वर का वचन आईने के समान है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। That is on one side of the coin. यह सिक्के का एक पहलू है। That's what Isaiah, he saw the glory of God and he was so convicted. He said, Lord, I'm a man of dirty lips. और यही यशायाह के साथ हुआ, जब उसने परमेश्वर को देखा तब उसने कहा कि परमेश्वर, मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ। But on the other side, the Holy Spirit wants to change us, like it says in 2 Corinthians 3:18, I think. He wants to change us into the image of Jesus. लेकिन दूसरी ओर पवित्र आत्मा कहता है, 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है कि वह पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। That's why Isaiah had so much of boldness when the Lord said, who will go for me? Isaiah did not say, Lord, no, I am an unworthy man. I've already sinned. No, he said, Lord, here I am, send me. That's not pride, that's boldness in the presence of God. और जबकि परमेश्वर ने के सामने उसने प्रभु को देखकर अंगीकार किया, यशायाह ने कि मैं पापी अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन तुरंत जब परमेश्वर ने कहा मेरा सुसमाचार लेकर कौन जाएगा, तब बड़े ही हियाव के साथ उसने परमेश्वर से कहा कि हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा। यह कोई घमंड नहीं है, लेकिन यह हियाव और हिम्मत है प्रभु के सामने। And let us not give any excuses. Okay, Jesus,
He's a great man. Isaiah is a great prophet. But what about Stephen? He's not a prophet or an elder. He is just an ordinary brother serving food at the end of the meeting. It says he could see the glory of God when people around him were biting their teeth, angry at him. और अपने विषय में यह सब कुछ सुनकर हम सफाई न दें कि परमेश्वर प्रभु तो परमेश्वर था और लेकिन हम देखें इस स्तिफानुस को, वह तो एक सादा कलीसिया का भाई या व्यक्ति था जो खाना परोसता था, लेकिन उसने जब उसे सताया गया तब उसने अपने हृदय की शुद्धता के द्वारा परमेश्वर को वह देख पाया। Yeah, the Lord wants to do amazing things in our life, brothers and sisters, if we yield to Him. और परमेश्वर अद्भुत बातें हमारे जीवन में कर सकता है अगर हम उसकी ओर झुकेंगे तो। That may we seek for this life where we have that blessedness, that happiness of the Lord, when we have that pure heart that comes from the Holy Spirit, so that we can see God everywhere. और ऐसी चाहत भरे जीवन के लिए हम आशा रखें कि ऐसे शुद्ध हृदय से जैसे परमेश्वर हमें चाहता है बने और अपने जीवन में हर परिस्थिति में हम परमेश्वर प्रभु को देख पाएं। May the Lord help us. Amen. परमेश्वर हम सबकी मदद करे। आमीन। Brothers and sisters, thank you for joining in, and I thank the Lord for what we heard thus far. भाई और बहनों, आपका धन्यवाद है कि आपने इस सभा को ज्वाइन किया है और उस सब के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमने सुना है। So blessed by what we heard from Brother Robert. और कितना आशीषित हम हुए हैं जब हमने भाई रॉबर्ट को परमेश्वर का वचन बोलते सुना है। I feel God speaking to us and showing us what we truly lack in our lives. और परमेश्वर हमसे बात करते हुए हमें दिखा रहा था कि किस चीज की हमारे जीवन में कमी है। And the Lord really spoke to me in terms of what I really lack in my life. परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मेरे जीवन में किस चीज की कमी है। And as I was meditating on this verse when we decided to take this as a topic, and I realized the point where I am totally defenseless in front of God when He tells me to be pure in heart. और जब हमें ये कहा गया और इस वचन पर जब मैं मनन कर रहा था तब ऐसा हुआ इस पर मनन करते हुए कि मैं अपने विषय में कुछ भी अपने बचाव परमेश्वर के सामने रख नहीं पाया जब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की। You see, all of us have the flesh of Adam, और हम सबको आदम के समान एक शरीर है and we love to sin. और जो शरीर पाप करने से प्रेम करता है। And we are already corrupt because of the flesh that we have taken in from Adam. और जो आदम से हमें शरीर मिला है वह शरीर ही एक दूषित चीज है। And we are far away from what God's standards are. और इस कारण से हम परमेश्वर के स्तर से बहुत ही दूर हैं। Therefore, we are totally impure. और हम तो पूर्ण रीति से अशुद्ध हैं। From the time that we are born, we have the points of where we fight for attention, fight for things such as toys, fight for things such as food. और जन्म से ही ऐसे स्वभाव के बच्चे या लोग बन जाते हैं कि हम लड़ाई करते हैं कि हमारा ध्यान रखा जाए, हमें कुछ महत्व दिया जाए, हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मानो लड़ते रहते हैं। And we progress on to even greater things like things such as availing of things of the flesh. We go into impure thoughts. We lie. We cheat. और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और भी हम इस शरीर के स्वभाव के कारण बुरे बन जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, वासना करने लगते हैं, अपने स्वार्थ की खोज करते हैं, अशुद्ध विचार रखते हैं। So we are consistently impure. We become consistently impure. और इस तरह से हम लगातार अशुद्ध बने रहते हैं। And as I was thinking on what Brother Robert shared. और जैसे भाई रॉबर्ट ने कुछ बांटा तब मैं कुछ विचार और मनन कर रहा था that the impurity that needs to be driven out from my heart cannot be done by myself. और अपने हृदय की शुद्धता
पा लेना यह मैं अपने आप से नहीं कर सकता। And this is what we saw as we meditated on all the other beatitudes that we went through over the past couple of months. और एक दो महीने से जो हम मनन कर रहे हैं इसके ऊपर के वचनों पर पहाड़ी उपदेश के अलग अलग धन्य अवस्थाएं जिनका वर्णन यहाँ 5वें अध्याय में मत्ती के किया गया है। This is an act that only the Lord can do within us. और यह एक कार्य या क्रिया है जो परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर कर सकता है। We heard Brother Robert saying that the Holy Spirit makes us pure through God's word. और हमने भाई रॉबर्ट के द्वारा सीखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। That the Holy Spirit makes us pure through fellowship with other brothers and sisters who desire to be pure. और पवित्र आत्मा ऐसे भाइयों और बहनों की संगति के द्वारा हमें शुद्ध करता है जो चाहत रखते हैं एक शुद्ध हृदय की। And that the Holy Spirit makes us pure through brokenness. और पवित्र आत्मा तीसरा हमें तोड़ने के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। And as I was thinking about it, there is a verse, I believe it's in Malachi. और जब इन बातों पर मनन कर रहा था तब एक वचन जो मलाकी की पुस्तक में मुझे मिला। In Malachi chapter 3, मलाकी इसका तीसरा अध्याय verse 2. दूसरा वचन। Malachi chapter 3 verse 2, but who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire. परंतु उसके आगमन के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह प्रकट हो तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। He will sit as a smelter and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. तीसरा वचन, वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा और लेवियों को शुद्ध करके उन्हें सोने और चांदी के समान ताएगा, जिससे वे यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सके। Yeah, Jesus is like the refiner's fire. He seeks to refine us so that we will have, as brother said, the single-mindedness of having our devotion to Christ and Christ alone. और प्रभु यीशु मसीह जो है वह इन वचनों के अनुसार शुद्ध करने वाली आग के समान है, जिससे वह हमें शुद्ध करके हमें एक मन और एक चित्त परमेश्वर की ओर लगा हुआ बिना भटका हुआ चित्त हमें दे सके और ऐसे चित्त का हमें बना सके। And Jesus is the one who baptizes us with the Holy Spirit and fire, it says in Matthew. और मत्ती में लिखा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। And he will refine us so that we are as pure as silver and gold. और वह जो भट्टी के समान शुद्ध करने वाली आग है प्रभु यीशु मसीह, कि हम सोने और चांदी के समान शुद्ध बन जाएं। Again, when I was thinking about this, I was wondering what will happen if I pray to God, if I pray to the Lord. We hear this, we've heard about this Psalm in Psalm 51 verse 10, create in me a pure heart. और जब इन पर मनन कर रहा था और यह कह रहा था, मैं तुझसे प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जैसा भजन संहिता 51:10 में लिखा है कि परमेश्वर मुझे तोड़ और मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। Yeah, I mean, do we really understand when we say that create in me a pure heart, that we don't come with a pure heart, from birth, and we don't continue with that pure heart as we progress, as we grow. क्या आप इस बात को समझ पाते हैं कि जैसे हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, तब जब हम जन्म से एक ऐसे हृदय के जो शुद्ध नहीं है और बढ़ते हैं तो और भी अधिक अशुद्ध हृदय के बनते जाते हैं। And when we are actually asking God to create in us a pure heart, we are asking Him to take away that entire dross, the corruptness that is there within our flesh. और जब हम प्रभु से कहते हैं कि पिता मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, अर्थात हम यह कह रहे हैं कि पिता मेरे अंदर जो भी विभाजित हुआ बुराई और अशुद्ध हृदय है उसको तो निकाल दे।
and therefore that thing can only come when we go through that fire, we go through brokenness. और जब कभी हम उस आग से जो शुद्ध करने वाली है जाएंगे तब यह होगा, अर्थात अपने हृदय को टूटेपन से जाने देंगे। It is the time when we have when we are meditating on God's word is able to cut through our flesh and is able to take away the impurity that is there within और when जब we हम obey. परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर से वह पत्थर रूपी या शारीरिक हृदय को काट कर निकाल सकता है। And the purity that we see in our other brothers and sisters of old, and even the one who are with whom we are interacting now, people who have been there ahead of us, on whose shoulders we stand, when we see their examples, and to with whom now we communicate and talk to, when we see that there are brothers and sisters who have a similar mindset, it pierces our heart. और जब कभी हम ऐसे अपने भाइयों और बहनों से मिलते हैं जिनके हृदय ऐसे शुद्ध हैं, तब हमें उनके द्वारा एक प्रोत्साहन मिलता है अपने विषय भी शुद्ध हृदय पाने के लिए। Brother talked about this unknown blind sister who whose fingers became numb and she was so gripped by the word of God. और जैसे भाई ने हमें बताया, वह बहन जो अंधी थी और उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते अपने उंगलियों के जो एहसास को है उसने खो बैठी। And through her lips she started feeling again और the जब उसने braid's grip. देखा कि उसके होठों से वह संवेदनशील अधिक है या महसूस करने की शक्ति उसके होठों में अधिक है, तो अपने होठों से वह पवित्र शास्त्र पढ़ने लगी। We have not fellowshipped with this sister in person. We have not met her. और हम व्यक्तिगत रूप से ऐसी बहन से नहीं मिले हैं, उसके साथ संगति हमने नहीं की है, But we fellowship with her in what she has said and in spirit. लेकिन हम उसके साथ संगति कर सकते हैं जो कुछ उसने कहा है और जो कुछ उसने किया है उसके साथ। Brother said he wept when he heard that. I wept when I hear this. और भाई ने कहा कि जब मैंने यह सुना तब मैं बहुत ही फूट फूट कर रोया। भाई कहता है मैंने भी जब इसे सुना तब मैं भी रोया। इस तरह से हम उस बहन के साथ व्यक्तिगत संगति तो नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा में हमने उसके साथ संगति की है। Yes, and that is why when we go through this brokenness, the Lord wants us to be solely for Him. और इसी तरह से जब हम टूटेपन से गुजरते हैं तो हम बनते हैं ऐसा जैसा परमेश्वर चाहता है कि केवल हम उसी के बने रहें। In the same verse that we read in Malachi, why is God asking us to go through this? Why is the Lord allowing us to go through this? और जब हमने मलाकी में इसे पढ़ा तो क्यों परमेश्वर हमारे लिए अनुमति देता है कि ऐसी शुद्ध करने वाली अग्नि की भट्टी से हम होकर गुजरे। So Malachi 3 verse 3 and the second part has the answer. और मलाकी इसका तीसरा अध्याय तीसरा वचन इसका दूसरा भाग इसमें इसका उत्तर लिखा है। So that they, as in we, the sons of Levi, may present to the Lord offerings in righteousness. जिससे लेवी लोग यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सकें। Yes, and that whatever we offer now is worthless. तो आज हम जो कुछ परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं वह तो बिल्कुल निकम्मी है या अयोग्य है। But there is a present, there is an offering that comes to the Lord, and that is an offering that comes in righteousness. और लेकिन एक ऐसी भेंट है जो परमेश्वर को हम अर्पित करते चढ़ाते हैं, वह है धार्मिकता से भेंट। So that we may know that the Lord will take away all that is there of this world right from the inside. कि परमेश्वर वह सब कुछ जो हमारे हृदय के अंदर संसारिकता भरी हुई है उसे हमारे अंदर से अलग कर देता है। And when we know that when Jesus was talking about this, when he was talking about the purity in heart, he was not talking about something which is from the outside. He was talking everything that is from the inside. और जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने हृदय की शुद्धता के विषय में बातें की, हमने उसे सुना है, तो वह बाहरी रीति से शुद्धता की बातें नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर से शुद्ध करने वाली बातें हैं।
He put everything into the garbage bin when the Pharisees were trying to clean the outside of clean the outside of the cup, and were very careful about the kind of food that they ate. और जैसे ही फरीसियों ने अपनी धार्मिकता दिखाई कि हम वे हाथ धोकर वे खाना खाते, अर्थात बाहरी रूप की उनकी धार्मिकता और शुद्धता को, इन सब शुद्धता को जो धार्मिकता बाहर की है, प्रभु यीशु ने कूड़ा करकट करके कचरे में डाल दिया। And that is why he wants us to be pure, which is single-mindedness in devotion to Christ. और इस तरह से परमेश्वर हमें पूर्ण एकाग्र चित्त करना चाहता है, जो मसीह के लिए हमारा, केवल मसीह के लिए हमारा हृदय हो। So that he is the most important, or rather he is the only important thing in our lives. तो ऐसा होता है कि केवल वही एक महत्व का हमारे जीवन में बन जाता है, और कोई नहीं, केवल वही महत्व का हमारे जीवन में रह जाता है। And that is why, as brother also said, that when we go through this, that come the circumstance, whatever the circumstance be, we will see him in all our trials. We will see him in all the things that we go through daily. और जैसे भाई ने हमें बताया कि जब कभी परमेश्वर में टूटेपन से ले जाता है, तो जो कुछ हम अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा, उन दुखों और परीक्षाओं के द्वारा हमें शुद्ध करके हमारी आंखों को परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है। We only see him when somebody is arguing with us, we see God standing right next to this person, and instead of looking at the person who is accusing us, we look at God, and the Lord tells us, go through this. और जैसे ही कोई व्यक्ति हमसे वाद विवाद करता है, हम पर दोष आरोप लगाता है, तो वह व्यक्ति को हम जो हमारे सामने खड़ा है नहीं देखते, लेकिन उसके साथ खड़े हुए परमेश्वर को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर कहता है, तुझे इन सब में से होकर गुजरना है और मुंह नहीं खोलना है। Don't speak. Yes, exactly what brother said here. Don't speak. और जैसे हमने सुना कि यह सब कुछ अन्याय और बुराई सहते हुए, दोष आरोपण सहते हुए तुझे मुंह नहीं खोलना है। Forgive him. उसे क्षमा कर दे। And this is that when we go through our trials, our daily troubles, and all that, we realize that all of these circumstances are arranged for us so that we may become pure. और यह सब कुछ की जो परमेश्वर अनुमति देता है कि हम परीक्षाओं से जाए, कठिन परिस्थितियों से होकर जाएं, कि इन परीक्षाओं और कठिन परिस्थितियों के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं और प्रभु के समान बन जाएं। I am really encouraged by what I heard today, and I pray that this will be the way that the Holy Spirit will bring us towards purity, with a single-mindedness of devotion to Christ. और जो कुछ आज हमने सुना है, उससे हमें और मुझे विशेष बहुत ही आशीष और प्रोत्साहन मिला है कि पवित्र आत्मा ऐसा करे कि हम एक ही मन के, अर्थात बिना विभाजित और दुचिते हुए, केवल प्रभु के लिए ही समर्पित होकर जिए, जो शुद्ध हृदय को दर्शाता है। Amen. आमीन।